गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था 14 सेमीकंडक्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, देन एनर्जी बैंड थ्योरी and types of substance according to energy band theory. We have defined conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band theory. Then we have discussed about different types of semiconductor. First is intrinsic semiconductor, then second extrinsic semiconductor. Then extrinsic semiconductor is again divided into two parts, two types: n-type semiconductor, p-type semiconductor, and then we join two semiconductor, one n-type and another is p-type semiconductor, the formation of p-n junction. And after p-n junction we had discussed about p-n junction, diode and its biasing. Biasing means connection of p-n junction diode. We had two types of connection. First one was forward biasing and second one reverse biasing, and we had drawn its characteristics, forward characteristics as well as reverse characteristics. And then we had discussed about application of p-n junction diode. We have one application, rectifier. Rectifier is a device which is used to convert alternating voltage into pulsating DC voltage, or you can say alternating voltage into DC voltage, direct voltage. Okay, in rectifier we cannot achieve complete constant direct current, but we can achieve pulsating DC. Okay, the polarity becomes constant but magnitude may change according with respect to time of that particular waveform. And we had two types of rectifiers. First one was half wave rectifier and second one full wave rectifier. In full wave rectifier one filter circuit is also there. That's how we had discussed about different types of different lectures of this chapter, and in total 10, in the previous 10 lectures we had discussed this up to full wave rectifier, and waveform of full wave rectifier also we had drawn. And now today we are going to discuss optoelectronic devices. Okay, optoelectronic devices. In earlier syllabus, in our physics syllabus, we had one more type of device which is called Zener diode. Okay, Zener diode also we had in our syllabus of physics, but this year in 2020 this Zener diode has been removed because that Zener diode were also very important, but this year it is removed because of 30% reduction in the syllabus. Okay, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम स्टडी कर रहे थे, और अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करना है, और यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या इफेक्ट करेगा, या फिर कोई ऐसा भी डिवाइस अवेलेबल है जो कि लाइट को इमिट भी कर सकता है. यस, दोनों ही अवेलेबल है. इसमें मोस्टली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिवाइस होंगे. फर्स्ट डिवाइस फोटो डायोड. फर्स्ट डिवाइस इज फोटो डायोड. सेकंड वन आफ्टर फोटो डायोड वी हैव light emitting diode, and third one will be solar cell. Okay, in this we have 3 types of devices. First one is photodiode, second one light emitting diode, and third one is solar cell. So we will study one by one. First of all we will discuss about photodiode. What is photodiode and how it will work?
and what is its working. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फोटोडायोड. ओके, आपने कई बार नोटिस किया होगा जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है हमारे पास, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे या किसी पार्क वगैरह में जो लाइट्स होती है, जो पार्क वाले लाइट्स है, बहुत बार होता है कि जैसी मॉर्निंग होती है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है सनलाइट की, तो उसी के साथ वो लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है. या फिर जो इवनिंग का टाइम आता है, तो इवनिंग के टाइम में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, अंधेरा इंक्रीज होगा, डार्कनेस बढ़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे लाइट लगी हुई है वो लाइट अपने आप ही ग्लो करने लग जाती है, ऑन हो जाती है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ऐसा डिवाइस लगा होता है, दैट डिवाइस विल डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. वो लाइट क्या करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करेगा, और उस इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के अकॉर्डिंग ही वो आगे उस इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्स करेगा. ओके, उसके आगे के लिए क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा कि लाइट हैज टू बी स्विच ऑफ और इट हैज टू बी स्विच ऑन. इफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज मोर हायर देन इट विल स्विच ऑफ द लाइट, एंड इफ द इंटेंसिटी इज लेसर, darkness is there, then it will turn on the light, switch on the light. So this is how we can connect, we can draw this photodiode. Okay, a device which can detect the intensity of light is known as a photodiode. So look here how photodiode is made and how what is the working. Photodiode is nothing but a पीएन जंक्शन डायोड. ओके, ये कुछ नहीं है, केवल एक पीएन जंक्शन डायोड, ये सीधा डायरेक्ट जो आप पढ़ते हो. पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड एंड दिस वन इज डिप्लीशन लेयर. ये इतनी क्या है, डिप्लीशन लेयर. तो फोटो डायोड में क्या होता है, पूरा द कंप्लीट पीएन जंक्शन डायोड इज कवर्ड विद, it is covered with some kind of material, but one window is remaining open. इसके यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, यहाँ से क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर इंसिडेंट कर सकती है इस पीएन जंक्शन पे. न केवल यहाँ पे बल्कि पूरा जो सरफेस होगा, पूरे सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट करेगी. ओके, एंड दिस पीएन junction diode, this photodiode is connected in reverse bias. Why it is connected in reverse bias, that I will discuss with you after its working. Okay, why it is so? This is negative terminal and this one is positive terminal. Okay, so now ये P side है, ये N side है, और ये क्या है, विंडो. यहाँ पर ये इसकी डिप्लीशन लेयर है और इसकी ये विंडो है, और ये आपके पास क्या है, इसकी बैटरी है. अब आप देखो इसके आगे क्या होगा. देखो ये जैसी विंडो है यहाँ पे ओपन है पीएन जंक्शन पर, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि पीएन जंक्शन पे क्या होता है, पी साइड की तरफ नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं और एन साइड की तरफ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे. ठीक है, जो आपके पास ये ऑपोजिट और रिवर्स बायसिंग है, इसकी वजह से इसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज होगी. एक ये चीज होगी. अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो मैंने आपको बनाया है, जो पीएमपी जो आपका डिप्लीशन लेयर होती है उसका डायग्राम बनाया है. ये डिप्लीशन लेयर आप जितने अच्छे से बना सकते हो, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से है. डिप्लीशन लेयर को समझने के लिए हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, कि इन्हीं से आपको आगे फोटोडायोड का मान लो, या फिर पीएन जंक्शन डायोड का मान लो, या फिर रिवर्स बायस का, फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, ये सारे क्या है, पीएन जंक्शन से ही आगे निकल के आते हैं. ठीक है, अगर वो आपका एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उस पार्ट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये कुछ नहीं है, ये मान लो, फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी अपने आप ही अंगुलियों पे हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, आपको खेल लगने लगेगा ये. लेकिन अगर वो वाला पार्ट आपका सही नहीं है, अच्छे से नहीं किया हुआ आपका, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डिप्लीशन लेयर है, ये पी साइड है, ये एन साइड है. डिप्लीशन लेयर में पी साइड की तरफ नेगेटिव इमोबाइल आयन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन होता है. यहाँ पर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज मेजॉरिटी. Electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers in n-type semiconductor. Okay, so now look, this is our
depletion layer. And what is the direction of electric field? Direction of electric field is towards this, from N to P. ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसकी, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। यहां पर आपको ये देखना है कि जैसी लाइट इंसिडेंट होगी तो इस डिप्लीशन लेयर में बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड पूरे नहीं होंगे होने को तो, ठीक है, लेकिन यहां पर इमोबाइल आयंस है और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिलती है तो आपको पता है क्या होता है। मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है, ये एक सिलिकॉन एटम है, दोनों के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, किससे? इस सनलाइट से एनर्जी मिल रही है। बिकॉज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट इज न्यू, frequency of sunlight is nu, then total energy of this sunlight is h nu equals to E. Okay, if this E energy of this sunlight photon is greater than the energy band gap, अगर ये एनर्जी बैंड गैप के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या करेगा, ये सिलिकॉन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगी ये लाइट, और अगर ये लाइट इसको ब्रेक कर देगी तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से कहां पर जनरेट होगा, इस डिप्लीशन लेयर में जनरेट होगा। मान लो यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हो गया यहां पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर मिल गया, और ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ओके। और इस वजह से अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा आपने ऑपोजिट रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ये आपका होल है, होल विल मूव टुवर्ड्स p साइड एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स n साइड, ओके। एंड नाउ दिस करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, दिस करंट विल फ्लो इन दिस, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के ऑपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जैसे ये चार्ज कैरियर इस सर्किट में मूव करेंगे तो इन चार्ज कैरियर्स के कारण भी, इन चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट फ्लो होगी, ओके। और इन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसी की वजह से, उसी की हेल्प से हम लाइट की इंटेंसिटी डिटेक्ट कर रहे हैं, ओके। वी कैन डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय यूजिंग दिस motion of these charge carriers, okay। so now how we will draw this diagram, so look, graph of photodiode, current and voltage, okay। ये सब चीज तो आपको ध्यान में रखनी, दोबारा रिपीट करूंगा तब देखना, ठीक है। मान लो ये आपके पास कौन सा कनेक्शन है, ये रिवर्स बायस कनेक्शन है, ओके। ये जीरो हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ठीक है। माइक्रो एम्पीयर में करंट होती है, सबको पता है। ये किसमें होता है, ये वोल्ट्स में होता है, ये भी सबको पता है, अगर पता नहीं है तो कर लो। मान लो सनलाइट अपीयर नहीं हो रही, यहां पे सनलाइट फॉल नहीं हो रही, इंसिडेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करंट फ्लो होगी यहां पे? यस होगी, क्योंकि रिवर्स बायस अगर ये है यहां पे, तो रिवर्स बायस की वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी करंट कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होगी, ठीक है। और ये माइनॉरिटी करंट कैरियर्स के कारण करंट इतनी फ्लो हो रही है, बहुत माइन्यूट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, आपको पता ही है। कौन से बायस में? रिवर्स बायस में। और ये करंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, लगभग यहां से थोड़ी सी फ्लो हुई फिर लगभग कांस्टेंट आ गई। ये रिवर्स बायस का ग्राफ है, रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक से याद रखना। एक बात और बता देता हूं, यहां पर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने तक का तो बनाना ही नहीं है, अगर ब्रेकडाउन एक बार हो गया तो ये डिवाइस फिर से काम में लेने लायक नहीं बचेगा, तो इसलिए हम इसको दोबारा
से काम में लेने के लिए हमें लेना दोबारा काम में, फिर से काम में लेना है, इस वजह से हम यहां पर ब्रेकडाउन पोटेंशियल की पहले रोक देंगे। ओके, इसके बाद देन अब हमने क्या किया, एक सनलाइट की या कोई भी लाइट है, अदर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, उसकी इंटेंसिटी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो यहां पर कितनी एनर्जी मिलेगी, h न्यू एनर्जी मिलेगी। अगर इन बॉन्ड्स को मिलने वाली एनर्जी h न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप, कोई भी सेमीकंडक्टर है, किसी भी सेमीकंडक्टर का कोई ना कोई एनर्जी बैंड गैप तो होता ही है। जस्ट लाइक सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, अगर सिलिकॉन का है तो यहाँ पे 1.1 से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी, अगर ये एनर्जी Eg से ज्यादा हुई तो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट करके खत्म होकर के क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कैरियर्स विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, तो यहाँ पर इसकी जो करंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज इंटेंसिटी I1, ये I1 इंटेंसिटी के लिए, ओके। एंड इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, आपको पता है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंसिडेंट ऑन दिस पीएन जंक्शन, ओके। इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर ज्यादा नंबर ऑफ पीएन जंक्शन यहां से इंसिडेंट करेगी, और ज्यादा नंबर ऑफ पीएन जंक्शन पे अगर इंसिडेंट होगी तो क्या होना है, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होने पर करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। अगर और ज्यादा आप इनको इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। किसको इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो I3 इंटेंसिटी इज हाईएस्ट, देन I2 इंटेंसिटी, देन I1 इंटेंसिटी, ओके। Current will increase in magnitude with rise in intensity of sunlight or in other light, okay. And this one is I0. Okay. I0 is a current where intensity is zero, where no light is there. So this is known as dark current. डार्क करंट हो जाएगी। डार्क करंट कब है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी नहीं, कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही वहां पे। कहां पे नहीं हो रही, इस विंडो पे, इस डिप्लीशन लेयर पे कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही। लाइट नहीं है तो कौन है, डार्क है, डार्क है तो कौन है, डार्क करंट आ रही है, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल वर्क ऑन दिस फोटो डायोड, ओके। इन दिस फोटो डायोड अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे आपके सामने केवल एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पर ये कौन है, पूरा पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन होगी, पीएन जंक्शन यदि होगी तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखनी है, बार बार याद कर लो इस चीज को, ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है, पीएन जंक्शन है। इस जंक्शन के ऊपर डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर के ऊपर एक विंडो खाली छोड़ी हुई है जहां से लाइट इंसिडेंट हो सकती है। और अगर ये इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई तो इसकी इंसिडेंट होने वाले फोटोन, लाइट विल इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ फोटोन, तो ये फोटोन की इंटेंसिटी, फोटोन की एनर्जी h न्यू अगर बैंड गैप से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा होल बचेगा। जैसे ही यहाँ पर होल बचेगा, इस होल के जैसे यहाँ पर ये होल बचेगा, इस होल के लिए आपको करंट फ्लो होगी, इस होल और इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगी। इसी करंट को डिटेक्ट करके हम इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। कि आपको पता I1 करंट के लिए I1 इंटेंसिटी ज्यादा कम है, I2 करंट के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है, इसके लिए इंटेंसिटी और ज्यादा है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस, बाय द मेजरमेंट ऑफ दिस करंट वी कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ
तो ये हमारे पास क्या है, एक फोटो डायोड का कंप्लीट डिस्कशन है। एक बात और ध्यान रखना इसमें, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर को डिटेक्ट करना जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सिग्नल कैच करते हैं ना, सिग्नल गेन करते हैं, तो डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स ये मान सकते हो आप, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, 9 चैप्टर में बताया था आपको कि लाइट विल ट्रेवल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पता होगा आपको। तो वहां पर जो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं वो कौन से, फोटोडायोड के द्वारा ही करते हैं। फिर इंटेंसिटी ऑपरेटेड स्विच, ऑटोमेटिकली जो स्विच होते हैं, जो जहां पे स्ट्रीट लाइट है, जहां ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, वहां पे आपने कई बार देखा होगा विदेशों में, कई बार क्या होता है जब स्नो होता है या फिर बहुत ज्यादा काले बादल हो जाते हैं, डार्क क्लाउड्स होते हैं, तो उस रेनी सीजन में भी क्या होता है, लाइट ऑन रह जाती है। उसकी भी यही वजह है क्योंकि सनलाइट कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, तो वहां पर पता तो नहीं चलता कि दिन में इंटेंसिटी कम हो गया, रात में इंटेंसिटी, ये तो डिवाइस है, इसके ऊपर तो इंटेंसिटी जैसे ही कम होगी ऑन करेगा ये लाइट्स को। तो ये जो लाइट ऑपरेटेड है इसमें, और इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मतलब ये हो गया, मान लो कोई एक हॉल है, या कॉन्सर्ट हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, कैसे भी, या फिर हमारा क्लासरूम ही हो गया, हमने काउंटरिंग लगा देंगे, इस रूम की जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की है, तो 100 लोगों को तो काउंट करने के लिए किसी आदमी को बिठाएं, चौकीदार को बिठाएं, उसकी सैलरी लगेगी, तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस फिट कर देते हैं, फोटो डायोड फिट कर दो, वो अपने आप ही काउंट कर देगा, जितने काउंट निकल गए 100 निकल गए, गेट बंद अपने आप ही। तो ये उसमें भी काम में आता है। तो ये अपने पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर ये समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है आपको, इसको दोबारा रिवाइज करके देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ we have discussed our photodiode today, and in next lecture we will discuss about LED, light emitting diode and solar cell. Thank you everyone.